my channel and you're watching Ritika Gupta and video का thumbnail देख के you guys have right predicted or decided कि what is this video going to be all about. So yes guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि how I was able to find 8 internships in my 3 years journey of college. मैं जिनको अगर नहीं पता, I have made a separate video on my college which is Kamala Nehru College. If you are interested of watching that video, please go. I'll pin the link in the comment section और शायद description में, तो check it out. You might get some useful stuff. Now getting into the video, how I was able to find 8 internships in my 3 years journey. I was able to crack 8 internships and it was back to back, and I did internship in a span of like 4 months का 5 months 6 months ऐसे. I was able to find new internships. सबसे पहली बात, like the very first step of finding any internship, कुछ भी, please go and make your internshala profile. Now if you don't know what is internshala or what is LinkedIn, I will make a separate video of how to use that apps, how to make profile on that app. वैसे मैं basic इसमें बता देती हूँ. You have to go to your Play Store and type internshala and you'll get a icon of written IS. I will pin a picture here, कहीं भी मैं लगा दूँगी. You'll find that picture and then you have to download it. वो basic details मांगेगा. You have to fill that basic details and the internshala app will make your resume. वो आपका resume बना देगा on the basis of what information you have put up. Information as in आपके पहले से लेकर आपके 12th तक का अचीवमेंट्स यू हैव टू पुट. लाइक आई वॉज द स्टूडेंट, तो आई पार्टिसिपेटेड इन क्लास 12th MUN में, डिबेट कॉम्पिटिशन में, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, राइटिंग हिंदी पोएम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन, जो भी कुछ है, योर अचीवमेंट, यू हैव टू मेंशन दैट अचीवमेंट्स इन दैट LinkedIn और इन दैट इंटर्नशाला प्रोफाइल. ठीक है, ये क्लियर है. शायद ये भी हो सकता है कि यू माइट हैव वन प्राइज ऑन पोएम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन. ठीक है, तो पोएम रेसिटेशन में इट इज़ शोइंग कि आपका इंटरेस्ट शायद कंटेंट राइटिंग में हो सकता है. ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई टू मेक योर अचीवमेंट्स. आई एम अगेन सेइंग, प्लीज़ कुछ भी मत डाल देना अचीवमेंट्स में. ट्राई टू मेक इट वेरी फॉर्मल, बहुत ही फॉर्मल वे में लिखना. एंड अगेन काफ़ी ट्रू, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी डाल दूँ, क्योंकि इंटर्नशाला पे अगर आप इंटर्नशिप अप्लाई करोगे ना, तो ऐसा होता है कभी कभी कि पीपल दे यूजुअली आस्क द प्रूफ्स, द सर्टिफिकेट्स ऑफ योर पार्टिसिपेशन, ऑफ योर विनिंग. इफ अगर आप लिख रहे हो कि आई एम विनिंग MUN, आई हैव वॉन द MUN, आई हैव बैग्ड फर्स्ट प्राइज इन दिस, तो दे आस्क फॉर दैट सर्टिफिकेट. So try mentioning something which is like really formal and which is very similar to your interest. But guys, I made a mistake. I was not using LinkedIn in my first and second year, but I realized कि LinkedIn profile होना for a internship और for a job purpose also कितना ज़रूरी है. इन प्रोफाइल आप ऐसा कोशिश करो कि आप अपने LinkedIn को बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेबल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका फर्स्ट ईयर से LinkedIn बहुत ही अच्छा दिखने लगेगा, नो इट वोंट. बट अगर LinkedIn पे यू डाउनलोड द LinkedIn, ठीक है, तो यू कैन पोस्ट, ट्राई टू पोस्ट रेगुलरली ऑन योर फीड कि यू हैव पार्टिसिपेटेड इन योर कॉलेज इन दिस कॉम्पिटिशन, और उसके कुछ पिक्चर्स डाल दो. या फिर यू आर अ पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी, यू आर अ प्रेसिडेंट ऑफ एनी सोसाइटी, तो यू कैन अपलोड anything related to your college stuff, your achievements there. ठीक है, with pictures also, without pictures also, totally depends upon you. So the two thing which is very main ingredient of finding any internships. ठीक है, these two are very main ingredient of finding any internships. तो please try to build your resume very strongly on this both apps. तो ट्राई टू मेक योर LinkedIn अकाउंट और इंटर्नशाला ऐप डाउनलोड कर लो एंड यू विल रियलाइज दैट बहुत जल्दी तो यू वोंट फाइंड, बिकॉज यूजुअली इंटर्नशाला पे एंड LinkedIn अकाउंट पे ऐसे फाइंड करने में थोड़ी इनिशियली प्रॉब्लम्स आती है. ठीक है,
उसके बाद सेकेंड थिंग यू कैन डू इज़ ट्राई टू सर्च इंस्टाग्राम पेजेस जो बताते हैं अबाउट वेरियस इंटर्नशिप्स. बहुत सारे गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स भी होते हैं, वो बताते हैं. और ट्राई टू फाइंड सम पेजेस. मैं कुछ पेजेस मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे यू मे फाइंड इंटर्नशिप्स, क्योंकि उनके जो इंटर्नशिप्स वगैरह के जो भी प्रोग्राम्स वगैरह वो बताते हैं वो वैलिड होते हैं और वो सही बताते हैं. तो यू मे अप्लाई फ्रॉम देयर एज वेल. ठीक है. नाउ पहले मैं ये बात करूँगी कि मैंने मेरे इंटर्नशिप्स कितने सारे जो मैंने मतलब जो भी इंटर्नशिप्स मैंने किए हैं, जो भी मैंने फाइंड किया हाउ आई वॉज एबल टू क्रैक दोज इंटर्नशिप्स, और कैसे कैसे क्या होता है, व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ इंटर्नशिप्स. कोई भी इंटर्नशिप्स का ना देखो ऑलमोस्ट सारे इंटर्नशिप्स का ना प्रोसेस सिमिलर ही होता है. देयर इज़ नथिंग अ बिग चेंज. वो इंटरव्यू वाला प्रोसेस होता है. बहुत कम इंटर्नशिप्स में ऐसा होता है कि वो कुछ रिटन कराते हैं, बट कुछ में कराते हैं. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट बिकॉज मैंने वो नहीं किया है. बट मैंने जितने भी दिए हैं उसमें मैंने इंटरव्यूज़ ही दिए हैं. हाँ, 2 राउंड होते हैं, 3 राउंड होते हैं, तो ऐसे होता है. तो हाँ, ये एक पॉइंट हो गया. ठीक है. एंड व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर आई कंप्लीटेड माय फर्स्ट ईयर. और उसके मतलब फर्स्ट ईयर के लास्ट में, मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम में, जब सेकेंड ईयर वॉज गोइंग टू स्टार्ट, आई वॉज एबल टू फाइंड अ इंटर्नशिप इन हिंदुस्तान टाइम्स. ठीक है. आई वॉज इंटरेस्टेड इनिशियली आई वॉज इंटरेस्टेड इन कंटेंट राइटिंग. ठीक है. तो आई वॉज फाइंडिंग अ इंटर्नशिप बहुत दिन से. ठीक है. तो आई वॉज एबल टू फाइंड दिस इंटर्नशिप ऑन Google. I searched for internships in Hindustan Times and वो top results में वो आया. And then I again if you want to if you want other ways to find the internships, you may also research about it कि are there any vacancies or internships here, internships in Delhi, internships in ABP network, internships. I was a journalism student, so I was finding internships in the media houses. ठीक है. तो I was able to find internships. ठीक है. for Hindustan Times में. तो Hindustan Times में they had 2 rounds of interview and they'll ask you a basic question of why you want to do this internship. क्या if you get selected, what you'll give from your side to the company, मतलब what would be your value input to the company. ठीक है. और they'll ask some basic, they'll test your basic knowledge, they'll ask about your achievement. if अगर आपका previous work हुआ है तो फिर उसके बारे में पूछेंगे. बट मेरा it was my first internship, so I was not having any experience पहले का. तो मैंने बोल दिया कि I am not having any experiences. And guys, अगर आपके पास experience नहीं है तो try doing कुछ अच्छे internships unpaid. ठीक है. पहले अनपेड कर लो, एक कर लो या 2 कर लो. यू विल हैव अ एक्सपीरियंस. जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, तो यू विल पुट दैट थिंग इन योर रेज्यूमे एंड दैट विल बूस्ट योर रेज्यूमे. बिकॉज ये आपको पता है कि दैट वॉज नॉट पेड, बट यू विल हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. जैसे मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में 4 months का कंटेंट राइटिंग किया. दैट वॉज अनपेड, दैट वॉज नॉट पेड बिकॉज आई वॉज अ फ्रेशर फॉर देम. तो दैट वॉज नॉट पेड, बट आई हैड अ लॉट ऑफ गुड टाइम्स देयर. मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ऐसे जाना कि अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है. Then I gradually decided कि ठीक है, my interest is not not content writing area, but still I found it like very very interesting. Their work culture is really very good. हाँ, वो थोड़ा काम बहुत ज़्यादा देते हैं हिंदुस्तान टाइम्स वाले, but ठीक है, it was a good experience. Overall it was a good experience. फिर आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर. तो सेकेंड ईयर से मैंने हिंदुस्तान टाइम्स जो 4 months का किया था वो ख़त्म करके, एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अनदर इंटर्नशिप इन सम डिफरेंट एरिया. ठीक है. तो आई फाउंड अ इंटर्नशिप यूथ इंडिया फाउंडेशन, जहाँ पे मुझे HR का रोल मिला. अगेन दैट वाज इंटरव्यू राउंड. आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है. एंड दिस आई फाउंड थ्रू वन ऑफ माई फ्रेंड इन द कॉलेज. शी वॉज डूइंग द इंटर्नशिप देयर. ठीक है. शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ दैट ओवरऑल फाउंडेशन. तो मैंने भी उससे बोला कि आई वॉन्टेड टू डू इंटर्नशिप. सो शी सेड कि ठीक है, मैं बात कर लूँगी. एंड शी ऑर्गेनाइज्ड माई इंटरव्यू राउंड विथ द फाउंडर. ठीक है.
I got selected as well, but within 1 month of period, again it was unpaid. It was not paid. It was unpaid. Within like 1 month, I realized कि मुझे वहाँ का वर्क कल्चर नहीं समझ आ रहा है. एंड यार वो एक तो अनपेड था, एंड देन दे एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ वर्क, लाइक अ लॉट ऑफ वर्क. बिल्कुल ऐसे वो बिल्कुल सुबह से शाम एक्सप्लॉइट करेंगे. तो प्लीज़ डोंट गो फॉर एनी इंटर्नशिप जहाँ पे ऐसे आपको एक्सप्लॉइट करते हो. यू हैव अ वर्क टाइम राइट 6 hours, तो ट्राई टू डू दैट विद इन दैट आवर ओनली. उसके बाद मत करो यार, बिकॉज ठीक है एक्सपीरियंस लेना है, बट यू आर नॉट डूइंग अ फुल टाइम जॉब फॉर एनी वन. तो डोंट डू दैट. तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था. ठीक है, उसके बाद इन माई 3rd year I was searching for like a lot of internship. ठीक है, तब I was not very familiar with LinkedIn. मुझे पता भी नहीं था कि LinkedIn कैसे बनता है, इंटर्नशाला कैसे यूज़ होता है. I was not तब तक मैं इंटर्नशाला पे 1-2 ऐसे अप्लाई कर देती थी, बट मुझे रिप्लाई नहीं आता था. ठीक है, तो फिर जब हमारी ऐसे मतलब जब आई रियलाइज़ कि नहीं अब मुझे लिटरली कुछ चाहिए, लाइक आई वांट समथिंग सम इंटर्नशिप जो पेड हो, जो मुझे लाइक हर स्टूडेंट का होता है कि मतलब अगर वो बाहर है तो थोड़ा बहुत उनकी पॉकेट मनी जो भी खर्च होता है वो निकल जाए. तो मैं उसके लिए कोई इंटर्नशिप तो ढूंढ रही थी. ठीक है, तो उससे पहले आई वर्कड ऑन माई रेज्यूमे. आई लाइक अपडेटेड इट कि मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में काम किया है, एंड आई ऑल्सो वर्कड फॉर 1 month इन यूथ इंडिया. तो मैंने वो थोड़ा अपडेट किया अपने रेज्यूमे में. एंड देन इंटर्नशाला का एक और प्रोसेस है कि वो ना अगर आप किसी भी इंटर्नशिप में अप्लाई करते हो तो वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई डू यू थिंक वी हायर यू फॉर दिस रोल. ठीक है, किसी भी इंटर्नशिप में अप्लाई करोगे ना यू विल गेट दिस क्वेश्चन. उसके बाद फॉर्म सबमिट होता है. तो ट्राई टू मेक योर आंसर वेरी सूटेबल, जो कि ऐसे पढ़ते ही लगे कि यार यही बंदा है वो या यही बनती है वो. सो ट्राई टू मेक अ क्रिस्प आंसर. बहुत बड़ा मत जाना कि अरे ये वो नहीं, डोंट गो फॉर दैट. ट्राई करो कि बहुत ही छोटा और क्रिस्प रखो, मतलब बहुत ही ऐसा रखो कि पढ़ने वाले को लग जाए कि हाँ ठीक है ये बंदा सही है इंटर्नशिप के लिए. ठीक है, तो ये एक बात हो गया. उसके बाद ऐसे 3rd year में ना आई वॉज सर्चिंग अ लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा मैं इंटर्नशिप सर्च करने लगी. एंड देन आई बिल्ट माई रेज्यूमे थोड़ा अच्छा, मैंने उसको अपडेट किया. मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी ध्यान दिया. आई अपडेटेड माई लिंक्डइन प्रोफाइल एज वेल कि मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में काम किया है और मैंने यूथ इंडिया में भी 1 महीने काम किया है. तो उस टाइम पे ना हमारे कॉलेज से कुछ ऐसे, यार दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको कोई इंटर्नशिप ऑफर नहीं करती है, बट हाँ हमारे टीचर्स कुछ भेजते रहते हैं. तो उस टाइम ना ग्रुप पे एक मैसेज आया था जहाँ पे देयर वाज अ अपॉर्चुनिटी ऑफ सोशल मीडिया मैनेजर. तो मुझे लगा कि मैंने अगर कंटेंट राइटिंग में ट्राई कर लिया है, HR में ट्राई कर लिया है, तो लेट्स ट्राई इन सोशल मीडिया मैनेजर. ठीक है, तो उसमें आई अप्लाइड, I was interviewed and I cracked the interview and then I cleared the interview. उसके बाद यार the most toxic work culture I must say. यार interns को ना बहुत exploit किया जाता है. That was again a unpaid internship and the exploitation level, I mean that was so huge amount ना. तो वहाँ पे मेरा काम था कि आई हैव टू मैनेज अ प्रोफाइल, अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन's प्रोफाइल. इफ़ यू माइट नो Sonal Mansingh, she is a member of parliament and she is also a speaker in Lok Sabha. So मुझे उनका प्रोफाइल हैंडल करना था. लाइक उनके प्रोफाइल पे जो भी पोस्ट होंगे, जो भी कुछ भी मतलब स्टोरीज होंगी, वो मुझे देखना था. ठीक है, तो आई एक्सेप्टेड दिस चैलेंज. दो बहुत ही ज़्यादा काम था. आई डिड इट फॉर लाइक 1 month एंड इट वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज आई वॉज वेरी एक्सप्लॉइटेड. बहुत ज़्यादा मुझसे काम कराया जाता था. आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड. मैं दिन भर बिल्कुल ऐसे देयर वॉज नो अप्रिशिएशन एंड वो बिल्कुल ऐसे दिन भर सुनाते रहते थे. तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा. बट मैंने 1 महीने में किया. 1 महीने में थोड़ा सा बिल्ड और कर लिया. मैंने अपने प्रोफाइल को बूस्ट कर लिया कि ठीक है, आई हैव वर्कड ऑन सोनल मानसिंह मैम प्रोफाइल. इट वॉज अ वेरी बिग थिंग
और इट इज़ अ वेरी बिग थिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन समवंस प्रोफाइल हु बिलोंग्स टू पार्लियामेंट और हु इज़ अ स्पीकर इन लोकसभा. तो and I met her as well, and she's indulged into women empowerment and women's right ऐसे करके. तो yeah, I met her and I kind of recognized her कि ठीक है, her thoughts are this, but she's a very old person, around 80s में है वो अपने, but she's still very active यार. तो yeah, I met her. She was a nice person, I guess. शायद एक दिन पे मिली हो तो मुझे इतना समझ नहीं आया, बट शी वॉज अ नाइस लेडी. देन आई लेफ्ट दिस इंटर्नशिप. अब मुझे ऐसा था कि मेरा इंटर्नशिप्स पे विश्वास उठ गया था. मुझे लगा कि सारे इंटर्नशिप्स ऐसे अनपेड होते हैं एंड आई स्टॉप्ड इट. लाइक थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में तो मैंने बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया कि ठीक है, मुझे नहीं चाहिए इंटर्नशिप्स. बट फिर यार वही है ना कि सब कर रहे हैं, सबको देख के ऐसा था कि यार मैंने तो क्या ही इंटर्नशिप किया है, मैंने तो बस अनपेड किया है, वो भी 3 इंटर्नशिप में. मैं बस एक हिंदुस्तान टाइम्स वॉज द वन जहाँ पे मैंने 2-3 महीने 4 महीने का काम किया है. बाकी तो मैं 2 इंटर्नशिप्स में एक महीने पे मैंने क्विट कर दिया बिकॉज आई वॉज नॉट लाइकिंग द वर्क कल्चर एट ऑल. ठीक है, तो फिर आई एडेड दिस इन माई रेज्यूमे कि मैंने सोशल बोलबाला पे एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम किया है. ठीक है, देखो मैंने 2 ये चीज़ 1 महीने के लिए कंटिन्यू किया, बट इट बूस्टेड माई प्रोफाइल. इट काइंड ऑफ हेल्प मी टू फाइंड दोज कमिंग इंटर्नशिप्स. ठीक है, तो फिर मैंने ना थर्ड ईयर के थोड़े से 2-3 महीने बाद से स्टार्ट किया फाइंड करना. और इस टाइम ना लिटरली मैं बैठती थी और इंटर्नशाला पे मैं 10-10, 20-20 इंटर्नशिप्स को अप्लाई करती थी अपने प्रोफाइल को. उसमें ना कैटेगरी आती है, आप अपने सूटेबल प्रोफाइल को उस कैटेगरी से मैच करो. लाइक इफ़ यू वांट इंटर्नशिप इन HR पोजीशन, कंटेंट राइटिंग, तो आप उसको फिल्टर कर दो, HR कर दो. अगर वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो वर्क फ्रॉम होम कर दो, वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए तो वर्क फ्रॉम ऑफिस कर दो. मैंने फिल्टर करके मैंने लिटरली एक बार में 10-20 इंटर्नशिप्स अप्लाई करती थी. एंड मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत रिजल्ट्स नहीं मिले. मैं लिंक्डइन पे भी अप्लाई किया करती थी. ये दोनों तो मेरे बहुत मेन और प्रोमिनेंट सोर्स रहे हैं अभी के इंटर्नशिप्स फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो मैं ऐसे बैठ के और बहुत सारे इंटर्नशिप्स अप्लाई करती थी. ठीक है, एक टाइम पे तो मुझे बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं आ रहा था, बट आफ्टर दैट आई गॉट अ इंटर्नशिप इन जोहट. ठीक है, आई अप्लाइड फ्रॉम इंटर्नशाला ही, मैंने इंटर्नशाला से ही अप्लाई किया था एंड आई गॉट अ इंटर्नशिप देयर. ठीक है, इफ़ यू गाइज नॉट नो अबाउट जोहट इज़ अ कंपनी जो बेसिकली SaaS इंडस्ट्री में लोगों को हेल्प करती है अपना करियर बिल्डअप करने के लिए. एंड माई पोजिशन वॉज प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर. ठीक है, तो देयर वॉज 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू जहाँ पे मैंने 3 राउंड इंटरव्यू क्लियर किया. And guys, it was a paid internship. Yes, it was a paid internship. और वो बहुत अच्छी खासी अमाउंट में मुझे पे कर रहे थे नहीं. आई एम कंटिन्यूइंग दैट इंटर्नशिप अभी तक. तो दैट वाज अ वेरी गुड अमाउंट. मेरा पहला ऐसा था ना, पहली सैलरी या फिर पहले ऐसे मतलब पहला ऐसा इंटर्नशिप जो मुझे पेड मिला था एंड इतने अच्छे अमाउंट पे. तो या आई ज्वाइन दैट इंटर्नशिप. साथ ही साथ मैं दूसरा अप्लाई करती रहती थी. ठीक है, जोहट के बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन HR ब्रेनवर्क्स. ठीक है, मैं ऐसे मुझे करना नहीं था एक साथ 3-4 इंटर्नशिप्स, बट मैं इंटरव्यू देने से कभी पीछे नहीं हटती थी. मैंने हमेशा जितने भी इंटर्नशिप्स मैंने अप्लाई किया, अगर मैं आगे के लिए शॉर्टलिस्ट होती थी तो मैं इंटरव्यू देती थी, मैं उसको क्लियर करती थी एंड देन मैं रिजेक्ट करती थी कि नहीं मुझे नहीं करना है. ठीक है, एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड इन HR ब्रेनवर्क्स. ठीक है, तो मुझे लगा कि ठीक है एक इंटर्नशिप, वो भी पेड था. HR ब्रेनवर्क्स वॉज ऑल्सो पेड. तो मुझे लगा कि ठीक है एक जोहट में आई एम डूइंग इंटर्नशिप, मैं दूसरा कर लेती हूँ एंड आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू एक्सपेंसेस निकालने के लिए. तो मैंने HR ब्रेनवर्क्स ज्वाइन किया. मैंने इंटरव्यू भी क्रैक किया. दो राउंड्स उनके इंटरव्यू थे और मैंने दोनों क्रैक कर लिया. और फिर मैं उनके पास स्टार्ट किया मैंने काम करना. बट मुझे काम में बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और दैट वाज वेरी बोरिंग फॉर मी. ठीक है, तो आई क्विटेड. हाँ गाइज, आई हैव क्विटेड दैट इंटर्नशिप. मैंने बहुत क्विट किया है क्योंकि ऐसे तो यार एक्सप्लॉयटेशन इज़ अ वेरी बैड थिंग. ये अगर ये इंटर्न्स पे ना बिल्कुल ऐसे सारे काम फेंक देते
तो यू हैव टू स्पीक फॉर योर सेल्फ। कितने सारे इंटर्नशिप्स में तो मैंने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्डली बोला है दैट आई वोंट डू दैट बिकॉज दैट इज़ नॉट, वो चाहते हैं कि अगर आपका कंटेंट राइटिंग का पार्ट हो तो आप सोशल मीडिया पे हैंडल कर लो, आप सब कर लो, बट डोंट डू दैट। अगर आपका पार्ट इतना ही है तो प्लीज़ ट्राई मेकिंग डू उतना ही, ठीक है। तो ये हो गया एंड देन फिर मुझे मिला एक OLL करके, इट्स अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे आपने बायजूस अन अकेडमी को देखा होगा वैसे ही ये भी है, इट्स अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू हैव टू, मतलब आप अपने बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट में इनरोल करा के उन्हें जैसे क्लास 12th का, क्लास 11th का, लाइक यू इफ़ यू वांट टू इनरोल इन दैट फॉर योर किड्स लाइक यू मे, ठीक है। तो आई अप्लाइड देयर ऑन द पोजिशन ऑफ, मैंने किस पे अप्लाई किया था, इट वॉज अ पोजिशन इन सेल्स। मैंने क्योंकि सारे उसमें ट्राई कर लिया था तो मुझे लगा कि एक बार ये भी सेल्स, बेसिकली सेल्स नहीं था, वो बिजनेस डेवलपमेंट में था। मतलब यू हैव टू अप्रोच टीचर्स, क्योंकि वो उनका ऑनलाइन स्टूडेंट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, तो मुझे बेसिकली लोगों को अप्रोच करना था टू जॉइन आर OLL एंड टीच, एंड द टीचर्स यूज टू हैव अ डे पेमेंट, मतलब जिस दिन उन्होंने पढ़ाया उस दिन उनका पेमेंट उन्हें मिल गया, तो डेली बेसिस पे पेमेंट चलता था, ठीक है। तो यार आई फाउंड इट रियली वेरी बोरिंग, मतलब मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब आई वॉज नॉट एन्जॉइंग दैट वर्क। तो मैंने उसको लिटरली 10 दिन में छोड़ दिया बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू एन्जॉय दैट वर्क, ठीक है। तो आई क्विटेड दैट इंटर्नशिप एंड देन एक लास्ट इंटर्नशिप, मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स NGO वगैरह, सोशल वर्कर्स, मतलब सोशल वर्किंग में भी बिताया। तो हाँ, अगर आप सोशल वर्किंग में इंटरेस्टेड हो तो आप कोई भी ऐसे नॉर्मल इंस्टा हैंडल पे जा सकते हो, हमारी सहेली, रॉबिनहुड आर्मी, वहाँ से यू कैन अप्लाई फॉर देयर इंटर्नशिप्स, और वो फ्री और वो पेड नहीं होता, वो अनपेड होता। तो ठीक है, आप वो सब तो कर सकते हो। तो मैंने भी किया था मेरी सहेली में, और एक और में मैंने किया था, किसमें किया था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, बट मैंने एक और किया था, मैंने 2 किया था, 2 सोशल वर्किंग में किया था, ठीक है। फिर उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम नेक्स्ट एज लैब, ठीक है। तो और ये सारे इंटर्नशिप्स आई वॉज एबल टू फाइंड जस्ट फ्रॉम इंटर्नशाला, अप्लाइंग फ्रॉम इंटर्नशाला, ठीक है। तो आई वॉज एबल टू फाइंड दैट इंटर्नशिप एंड ठीक है। तो मुझे मिला नेक्स्ट एज लैब में, और देयर वॉज 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू अगैन, एंड कम्युनिटी मैनेजर का पोस्ट था वो, ठीक है। एंड the work was to work with a collaboration. It was a collaboration with 9 and Beyond. Now, if you guys don't know about 9 and Beyond, it's a pregnant woman lady community, जहाँ पे pregnant women का ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, इंस्टा ग्रुप होता है, जहाँ पे आई एम द कम्युनिटी मैनेजर। मुझे इंश्योर करना है कि उस कम्युनिटी में क्या पोस्ट हो रहा है, कैसे पोस्ट हो रहा है, मुझे पोस्टर्स बनाने थे, मुझे उस ग्रुप पे पोस्टिंग करना था, मुझे अगेन इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करना था जो लाइक रिसेंटली मॉम्स हैं, या फिर जो प्रेगनेंसी के फेज से बिल्कुल ऐसे प्रेगनेंसी के फेज़ में है, तो वो उनको अप्रोच करके अपने पास कोलैबोरेशन के लिए लाना था। बेसिकली अ वर्क ऑफ कम्युनिटी मैनेजर, एंड अगेन इट वॉज पेड इंटर्नशिप एंड इट वॉज ऑन गुड पेमेंट, ठीक है। तो आई जॉइन दैट इंटर्नशिप, एंड सिंस देन आई हैव बीन वर्किंग एट 2 इंटर्नशिप्स, जोहट एंड नेक्स्ट एज लैब, ठीक है। और जनवरी से मैं इन दोनों पे काम कर रही हूँ, बट जून के टाइम में नेक्स्ट एज लैब का ख़त्म, मतलब जो वो आपको ऑफर लेटर देते हैं, तो मेरे लेटर पे टाइमिंग पीरियड ख़त्म हो गई थी। तो आई डिसाइडेड लाइक ठीक है, रहने देते हैं, एक इंटर्नशिप काफ़ी है, बिकॉज इट इज़ पेइंग यू अ गुड अमाउंट। तो मुझे लगा कि एक इंटर्नशिप में रहने देती हूँ, तो मैंने एक इंटर्नशिप ही रहने दिया, एंड देन अभी तक मैं एक इंटर्नशिप कर रही हूँ, एंड इट इज़ रियली गुड एंड आई रियली इन्जॉय माई वर्क, एंड या गाइज दैट इज़ how I was able to find like 8 internships in my 3 years of journey. Like usually it's very difficult for first years to find internship, but please if you were watching this video, it's not that difficult. Try making your internshala your LinkedIn account and try to build up your account. If you don't know about
कि कैसे क्या पोस्ट होता है, तो आई पुट माई लिंक्डइन अकाउंट इन द डिस्क्रिप्शन, ताकि आप एक बार चेक करो। एंड साथ पे जिनको मैं फॉलो करती हूँ, आप उनका भी लिंक्डइन अकाउंट चेक कर सकते हो। लाइक यू विल फाइंड कि how it is important to build your LinkedIn account और internship। ठीक है, मैं LinkedIn से भी मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं फॉर जॉइन दिस इंटर्नशिप, डू दिस इंटर्नशिप। तो मैंने तो अब वो फेज़ मेरा बाहर आ चुका है। लाइक एक टाइम था जब मैं बिल्कुल एक भी इंटर्नशिप्स मुझे मिल नहीं रहे थे, और एक टाइम था जहाँ पे मुझे बैक टू बैक इंटर्नशिप्स के ऑफर आ रहे थे। तो या I hope I have covered everything in this video, and if you need any help or if you want to know anything about these internships, let me know in the comment section. And if you want to know about any good internships की जिसका लिंक मैं आपको भेज सकती हूँ, let me know, comment down below and I'll pin my Instagram there, and you can text me over there to ask my experience. I will have a personal conversation, one-to-one conversation. Yeah, that is it for the video. Do let me know if you want to know more interesting topics like this, how I was able to find itne internships in a span of 3 years. And comment down your favorite part. Let me know. I have pinned my Instagram. DM me if you want to know more anything. And thank you for watching. Bye.